সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু আজ থেকে। অধিবেশন শুরুর আগে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অপারেশন সিন্দুর থেকে ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার মহাকাশ অভিযান, তার বক্তব্যে উঠে আসে নানা প্রসঙ্গ। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, পেহেলগামের হত্যালীলার পর গোটা বিশ্ব চমকে গিয়েছিল। জঙ্গিদের দিকে বিশ্বের নজর ছিল। দল নির্বিশেষে দেশের হিত কামনায় অধিকাংশ রাজ্য দলের প্রতিনিধি বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন এবং বিশ্বের সামনে জঙ্গিদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। আজ তার জন্য সকল সাংসদকে ধন্যবাদ জানাই। 90 কোটিরও বেশি মানুষ সোশ্যাল সিকিউরিটির অধীনে এসেছে। ভারত এখন গ্লোকোমা বিরুদ্ধে লড়ছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইউপিআই এর মাধ্যমে বিশ্ব ভারতকে চিনছে। ইউপিআই ফিনটেকের দুনিয়ায় নিজের নাম অর্জন করেছে। 2014 সালে যখন আপনারা আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তখন আমরা বিশ্বের 10ম অর্থনীতি ছিল, আর আজ তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। একটা সময় ছিল 2014 সালের আগে, যখন মুদ্রাস্ফীতি ডাবল ডিজিট ছিল। আজ তা 2-এ নেমে এসেছে। মানুষ স্বস্তি পাচ্ছে। এটা ভালো বিকাশ যাত্রার লক্ষণ। আমরা গর্বিত যে বোমা বন্দুকের সামনে আমাদের দেশের সংবিধান জয়ী হচ্ছে। গতকাল পর্যন্ত যা রেড করিডোর ছিল, তা গ্রিন গ্রোথ করিডোরে পরিণত হয়েছে। সব সাংসদদের কাছে এটা গর্বের মুহূর্ত। তাদের গৌরব গান দেশবাসী শুনবে। শান্তি ও প্রগতি কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে এগুচ্ছে। আজ নকশালবাদ মাওবাদ শেষ হচ্ছে। নকশালবাদকে মূল থেকে উপড়ে ফেলার শপথ নিয়ে দেশ দ্রুত গতিতে সাফল্যের দিকে এগোচ্ছে। 100-রও বেশি গ্রামকে নকশাল মুক্ত করা হয়েছে। মেড ইন ইন্ডিয়া অস্ত্রের উপরে বিশ্বের আকর্ষণ, আস্থা বাড়ছে। আমার বিশ্বাস অধিবেশনে এ বিষয় নিয়ে উদযাপন সেনাবাহিনীর মনোবল বাড়াবে। রিসার্চ, ম্যানুফ্যাকচারিং আরও শক্তি পাবে। যুব শক্তির জন্য উপার্জনে নতুন পথ তৈরি হবে। অপারেশন সিন্দুরে ভারতের সেনা যে লক্ষ্য স্থির করেছিল, তাতে 100% সফল হয়েছে। 22 মিনিটের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের ঘরে ঢুকে তাদের ধ্বংস করে এসেছে। বিহারের একটা জনসভা থেকে আমি বলেছিলাম যে আমাদের সেনাবাহিনী খুব অল্প সময়ে নিজেদের ক্ষমতা দেখিয়েছে। এই বাদল অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হতে চলেছে। এটা রাষ্ট্রের জন্য বিজয় উৎসবের রূপ, রাষ্ট্রের গৌরবের অধিবেশন। প্রথমবার আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে ভারতের তিরঙ্গা উড়েছে। এটা প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে গৌরবের মুহূর্ত। বিজ্ঞান উদ্ভাবনের সফল যাত্রা ছিল এটা। লোকসভা, রাজ্যসভাও এই আনন্দ গৌরবের অংশ হবে। কৃষিকাজের জন্য অনুকূল পরিবেশ এখন। বিগত 10 বছরের তুলনায় এবার 3 গুণ বেশি জল জমা করা সম্ভব হয়েছে, যা দেশের জন্য বিশেষ উপকারী হবে। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं, उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा, जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम हैं, उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें
मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथियों, ये दशक हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि शांति और प्रगति कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने के कदम कदम पर प्रगति के एहसास करते रहे हैं। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को हम झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है, हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। साथियों, एक के बाद ऐसी घटनाएं देशभक्ति के लिए, देश की भलाई के लिए संसद में पहुंचे हुए हर माननीय सांसद के लिए गौरव का पल है। और संसद के इस सत्र में ये गौरव गान पूरा देश सुनेगा, हर सांसद से सुनेगा, हर दल से सुनेगा। साथियों, आर्थिक क्षेत्र में भी जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत
तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन दिनों 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। देश में एक जमाना था 2014 के पहले, जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानव के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है। लो इन्फ्लेशन के सामने हाई ग्रोथ एक अच्छे विकास यात्रा की दिशा है। साथियों, डिजिटल इंडिया, यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है, और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं, अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक वैश्विक समागम था, और उसमें भारत ने बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की है। आईएलओ का कहना है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी प्रकार से वैश्विक संस्था WHO ने ये कहा है कि भारत अब आंख की जो बीमारी आमतौर पर बारिश के सीजन में ज्यादा देखी जाती थी, ट्रैकोमा, अब भारत को WHO ने ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट RE न्यूज़।